Good morning, students. How are you all? Hope, hale and hearty, studying at your home. Students, today we are going to start with another chapter from your textbook, Flamingo. The name of the chapter is Deep Water. It is written by William O. Douglas. So, students, let's see something about the author William O. Douglas. So, William O. Douglas was born on 16 October 1898 as an American. He was a public official, legal educator, and politician who served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. He was best known for his consistent and outspoken defense of civil liberties. Nominated by President Franklin D. Roosevelt, Douglas was confirmed at the age of 40, one of the youngest justices appointed to the court. His term lasting 36 years and 211 days is the longest in the history of the Supreme Court. In 1975, Time magazine called Douglas the most doctrinaire and committed civil libertarian ever to sit on the court. Some of the famous books written by William O. Douglas are Of Men and Mountains, Strange Lands and Friendly People, My Wilderness, International Descent, Go East, Young Men, The Early Years, The Court Years, and many more. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So, students, this lesson, डीप वाटर, ये लेसन एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि विलियम ओ डगलस ने लिखी है. इसमें उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस को लिखा है कि कैसे एक यंग बॉय यानी कि एक जवान लड़का जो है, ही वॉज नियरली ड्राउंड मतलब कि डूब चुका था इन अ स्विमिंग पूल. लगभग वो बच्चा डूब चुका था. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, कि डूबने के बाद कैसे उसके मन में पानी का खौफ बैठ जाता है एंड कैसे वो उस खौफ से निकलता है, कैसे उस पानी के खौफ को वो मन से निकालता है. कितने अच्छे ढंग से डगलस ने इस चीज़ को इस लेसन में समझाया है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, see the first line of the chapter. The page number is 23. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. Now, in these lines, the author Douglas is explaining his own experiences. जो आई वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, वो आई वर्ड डगलस ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, अपने लिए
यूज़ किया है। वो कहते हैं इट हैड हैपन्ड, ये तब की घटना है। व्हेन आई वॉज मतलब कि जब डगलस 10 या 11 साल के आसपास के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने ये सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा, तो उनके यहाँ एक स्विमिंग पूल था। डेट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो याकीमा नामक जगह पे था स्विमिंग पूल, और वो बच्चों को मतलब जो भी स्विमिंग सीखने के इच्छुक होते थे उनको स्विमिंग सिखाता था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, वहाँ पे एक याकीमा नाम की नदी भी थी जिसे कि लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज नदी कहते थे, क्योंकि उसका वाटर लेवल कभी लोग जज ही नहीं कर पाते थे। कभी उसमें एकदम से कम पानी होता था, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, तो इसीलिए उसको धोखेबाज कहते थे। टिचरस मीन्स धोखेबाज। सो इस वजह से वहाँ पे कई लोगों की डूबने से डेथ भी हो गई थी, क्योंकि वो लोग पानी को जज ही नहीं कर पाते थे कि यहाँ पे पानी का क्या लेवल होगा। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और इसकी मम्मी जो थी डगलस की, वो हमेशा इसको मना करती थी कि तुम उस नदी में स्विमिंग सीखने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि मम्मियों को नेचुरली बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की टेंशन होती है, चिंता होती है ना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और उसकी मम्मी जो थी वो हमेशा उसको कोई ना कोई किस्सा जो वहाँ पे ड्राउनिंग का होता था, ड्राउनिंग यानी कि जो वहाँ पे डूबने के किस्से हुए थे, वो उसकी मम्मी उसको हमेशा याद दिलाती रहती थी, जिससे कि डगलस कभी भी वहाँ जाने की हिम्मत ना कर पाए। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, तो नदी को देखते हुए तो वो YMCA जो पूल था, स्विमिंग पूल था, वो बहुत ज़्यादा सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। अब जैसे कि स्विमिंग पूल के 2 एंड्स होते हैं, एक शैलो होता है, एक डीप होता है। तो वो जो YMCA पूल था उसका जो शैलो एंड था, शैलो मतलब कि जहाँ पे पानी कम होता है उस साइड में, उसकी जो डेप्थ होगी वो 2 या 3 फीट थी, जबकि जो दूसरा एंड था उसका वो 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, हाँ, वहाँ पे अगर कम हाइट का कोई बच्चा जाएगा या कोई लड़का जाएगा तो डेफिनेटली वो डूब सकता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब डगलस ने भी डिसाइड किया भाई स्विमिंग सीखनी है, तो उसने वाटर विंग्स के पेयर लेके आता है, एक जोड़ी वाटर विंग्स लेके आता है, और वो भी स्विमिंग पूल चले जाता है। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उसे पानी में नेकेड चलना अच्छा नहीं लगता था। एंड ही डोंट वांट टू शो हिज स्किनी लेग्स, स्किनी लेग्स मतलब कि उसकी पतली पतली टांगें थीं, तो वो उसको दिखाना नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन स्विमिंग सीखनी थी तो भाई पानी में तो जाना पड़ेगा। फ्रॉम द बिगनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. स्टार्टिंग से ही यहाँ पे विलियम और डगलस अपनी ही बात बताते हुए कहते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि बचपन से ही, बिगनिंग मीन्स यहाँ पे उनके बचपन से है, तो वो कहते हैं कि वो बचपन से ही फ्राइटेंड थे, घबराहट होती थी उनको पानी को देख के। एंड आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, अवर्जन मीन्स एक किस्म का घबराहट होना, ठीक है, एक किस्म का खौफ होना, टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। जब भी ये पानी को देखते थे तो इनके मन में एक किस्म का खौफ आ जाता था। ये कब स्टार्ट हुआ? व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब ये लगभग 3 या 4 साल के होंगे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और इनके पापा इनको कैलिफोर्निया की एक बीच पे घुमाने लेके जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ मीन्स जो
पानी की जो वेव्स बह के आती हैं, जो उसमें झाग आते हैं, दैट आर नोन एज सर्फ। तो ये पानी में खड़े हुए थे डगलस एंड डगलस के फादर। आई हंग ऑन टू हिम, और इसने अपने पापा को पकड़ रखा था कस के। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। हालांकि इसने अपने पापा को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था, ही हंग ऑन टू हिम, येट जो वेव्स आई, बीच पे जो वेव्स आई, पानी की जो लहरें आई, वो बहुत तेज़ थी, इसको धक्का देती हैं। ये अपने पापा के पास से छूट जाता है, जो इसने इसकी जो पकड़ थी वो ढीली हो जाती है, और ये पापा को छोड़ देता है। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और जो वेव्स होती हैं वो इसको बहा के ले जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बच्चा जो था ये पानी में बहने लगता था उस समय। माई ब्रेथ वॉज गॉन, इसको ऐसा लगा एक पल के लिए जैसे इसकी सांस चली गई है। आई वॉज फ्राइटेंड, ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फादर लाफ्ट, इसकी कंडीशन को देख के इसके पापा हंस देते हैं। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन इसके पापा तो हंसते हैं इसको देख के, इसकी कंडीशन को देख के, लेकिन उस दिन से इस बच्चे के मन में पानी के प्रति खौफ बैठ जाता है।